वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम जी, तो हमारी चर्चा चल रही थी जी, आजीवन स्वस्थ कैसे रहें। तो उसमें हमारे शरीर में जो स्नेह है उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, तो उसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी और ये बातें आई थी कि जो स्नेहपान है, स्नेहपान मतलब शरीर का स्नेहन करने के लिए शरीर में चिकनाई, आंतों में जो महास्रोतस है वो चिकना हो जाए, जिससे सभी प्रकार की गति अच्छी प्रकार से हो सके। तो जब महास्रोतस स्निग्ध होगा तो बाकी जो स्रोत हैं वो भी स्निग्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से स्नेहपान किया जाता है। तो इसमें जो अत्यधिक गर्मी हो तो रात्रि में स्नेह पीना चाहिए, और अगर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक शीतकाल में तो निषेध है स्नेहपान का सामान्य रूप से, लेकिन गर्मी में रात्रि में पीना चाहिए और जो सर्दियों के दिन है उनमें प्रातः काल पीना चाहिए, ये बात आई थी। और यदि रोग बढ़ा हुआ है तो फिर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी में भी लिया जाता है, उसमें भी अधिक गर्मी में भी रात्रि में ही लिया जाता है, और जो अधिक सर्दी होती है उसमें भी प्रातः काल में ही लिया जाता है। लेकिन वो वैद्य के निर्देश में ही रोग के अनुसार दिया जाता है। और दो प्रकार के स्नेहपान हैं, एक तो रोग के संशमन के लिए और एक संशोधन के लिए। संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो पंचकर्म के अंतर्गत आती है। उस पंचकर्म में से पहले, पंचकर्म से पहले स्नेहन और स्नेहन और स्वेदन का विधान है, तो उसके अंतर्गत स्नेहन किया जाता है। तो जो रोग का संशमन करने के लिए, उसको शमन करने के लिए, रोग का शमन हो जाए उसके लिए जो स्नेह का पान किया जाता है वो भूख लगने पर, जब पिछले समय का जो खाया हुआ अन्न है वो अच्छी प्रकार से पच जाता है और भूख लगती है तेज, उस समय पे ये संशमन स्नेह पिया जाता है। इसके अलावा जो संशोधन स्नेह है वो पिछली रात्रि के समय खाया हुआ आहार जब पच जाता है तो सुबह के समय संशोधन स्नेह का पान किया जाता है। और मात्रा भी इसकी अधिक ही होती है, जैसे 40 ml 50 ml से ऊपर ही की मात्रा होती है।
اس میں تھوڑی سی اور بات یہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر بہت ادھک اشن کال میں، بہت ادھک گرمی میں دن میں اسنیہ پان کوئی کر لے تو اس کو انیک پرکار کی سمسیایں جیسے مورچھا، ادھک پیاس لگنا، انماد ہو سکتا ہے، اور کاملا، یہ روگ ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے۔ تو جو ودھان جس ڈھنگ سے کیا گیا ہے اس ڈھنگ سے ہی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو اتنت شیت کال ہے، ہیمنت اور ششر، ہیمنت بیت جاتا ہے، ششر آرمبھ ہوتا ہے، تو بہت تیور ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو اتنت شیت کال میں یدی راتری میں اسنیہ پان کر لے کوئی تو بھی بہت ساری وکرتیاں جیسے پیٹ میں درد آدی ہونا، اروچی ہونا، شول اٹھنا اور پانڈو روگ، یہ سب روگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارتھات جو ودھان کیے گئے ہیں ان ودھانوں کو دھیان میں اوشیہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو باتیں اسنیہ پان سے سمبندھت بتائی جا رہی ہیں وہ ماترا ادھک ہی ہوتی ہے پینے میں۔ جو سامانیہ ہم بھوجن کو سنگدھ کر کے بھوجن کرتے ہیں، ارتھات اسنیہ بھوجن میں ہم پریوگ کرتے ہیں اور بھوجن سنگدھ ہی کرنا چاہیے ایسا ودھان ہے، تو اس کی چرچا یہاں نہیں ہے۔ وہ سامانیہ روپ سے ہم پریوگ کر سکتے ہیں سبھی رتوؤں میں، لیکن اس میں بھی جو سرو شریشٹھ ہے وہ دیشی گو کا گھرت ہے، اسی ادھکانش اسی سے سنگدھ ہم کو بھوجن کرنا چاہیے۔ وہ 12 مہینے اس کے لیے ہر دن اس کا اپیوگ ہم کر سکتے ہیں، ایسا بھی آیوروید میں ودھان آیا ہے سوستھ ورت میں۔ پھر اس کے بعد میں جو اسنیہ پان ہے، اسنیہ پیا جاتا ہے، تو اس میں ساتھ میں کیا پیا جاتا ہے، ارتھات کچھ انوپان ہوتا ہے۔ تو انوپان جو بتایا گیا ہے وہ جیسے دیشی گو کا جو گھرت پیتے ہیں تو اس کے بعد میں گرم جل پینے کا ودھان ہے، اور اگر تیل پیتے ہیں تو تیل کے بعد میں یوش پینے کا ودھان ہے۔ یوش کیسے بنتا ہے؟ تو یوش بنانے کے لیے دال کو ایک پوٹلی میں باندھ کر 18 گنے جل میں پکایا جاتا ہے، پوٹلی میں باندھ کے دال کو اور 18 گنے جل میں اس کو پکایا جاتا ہے۔ جب آدھا رہ جاتا ہے مطلب 9 گنا، تب پوٹلی کو ہٹا دیتے ہیں، جو درو بھاگ بچتا ہے اس کو یوش کہتے ہیں۔ تو تیل کا پان کرنے کے بعد میں یوش پینے کا ودھان ہے۔ اور سامانیہ روپ سے اگر یوں کہا جائے کہ جو بھی اسنیہ پیا جائے اس کے بعد میں گرم جل ہم لے سکتے ہیں، تو وہ گرم جل بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ اپواد بھی ہیں، جیسے بھلاوا بہت تیکھن ہوتا ہے، ایسے ہی تورک جس کو چال مونگرا کہتے ہیں، یہ دو اشن یہ بہت گرم ہوتا ہے، تو ان کے بعد میں گرم پانی نہ پینے کا ودھان ہے۔ ان کے بعد میں ان کا جو اسنیہ اگر پان ہو تو پھر گرم پانی نہیں پیا جاتا۔ تو یہ باتیں اسنیہ پان کے انوپان کے بارے میں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں کچھ پروچارنائیں ہوتی ہیں، ارتھات جس میں اسنیہ کو ملا کے اور کھلایا پلایا جا سکتا ہے، جیسے لوک میں تو ویسے سامانیہ روپ سے پرچلت ہے
کہ جو کھچڑی بنتی ہے، گھٹی ہوئی کھچڑی، اس میں خوب گھی ملا کے کھایا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو کچھ باتیں جو بتائی گئی ہیں، جیسے چاول ہے، تو سامانیہ چاول میں بھی گھرت اچھی ماترا میں کھایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اسی چاول کی ولیپی بنتی ہے۔ تو چاول بنانے کا کیا، ارتھات بھات جو ہے اس کو بنانے کا کیا ڈھنگ ہے، تو اس کی جو ودھی ہے، تو چاولوں اچھے سے دھو کر چاولوں کو 5 گنا جل ڈال کر کھلا ہی پکاتے ہیں، اور چاولوں کو دیکھتے رہتے ہیں پک گئے یا نہیں پک گئے، اس میں سے ایک چاول نکالا اور دیکھ لیا۔ تو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاول گل گئے ہیں اچھے سے، تو پھر اس کے بعد میں جو اس کا درو بھاگ ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، وہ جو بچے ہوئے چاول ہوتے ہیں وہ بھات کہلاتے ہیں۔ یہ ایک پکانے کی بھارتی ودھی ہے۔ اور جو وہ درو بھاگ ہے اس کا اپیوگ ہم کہیں اور کر سکتے ہیں، آٹا ماننے میں اور بھی کسی دال بنانے میں کہیں پریوگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو چاول بنیں گے وہ اسی طرح سے بنیں گے۔ پھر دوسرا ولیپی بتایا، جس میں کہ ہم اسنیہ کو اچھے سے ادھک ماترا میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو جیسے ولیپی بنانے کے لیے وہی چاولوں کا ہی بنتا ہے۔ یہ چاولوں کی کڑی ہوتی ہے، مطلب جو ٹوٹے ہوئے چاول ہوتے ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے، اور چاولوں سے 14 گنا جل ڈالا جاتا ہے۔ جب چاول گل جاتے ہیں، پانی آدھا رہ جاتا ہے، تو پھر ہٹا لیتے ہیں، اور یہ چاولوں سہت چاول بھی گل جاتے ہیں، بالکل گھل جیسے جاتے ہیں، تو یہ ولیپی کہلاتی ہے۔ آدھا رہ جانے پر، پانی آدھا ارتھات 14 گنا جل ڈالا تھا، 7 گنا رہ جائے تو ایسے یہ ولیپی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی اسنیہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بتایا گیا ہے منڈ۔ منڈ کیسے بناتے ہیں، اس کو ماڑ بھی کہتے ہیں سامانیہ روپ سے۔ جیسے منڈ بنانے کے لیے چاولوں کو 14 گنے جل میں لیا جاتا ہے، اور جب آدھا جل رہ جاتا ہے تو چاول جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ مانڈ رہ جاتا ہے، اس کو منڈ کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی گھرت کا سیون کیا جا سکتا ہے، ارتھات اسنیہوں کا سیون کیا جا سکتا ہے۔ دودھ میں بھی گھرت کو پریاپت ماترا میں سیون کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دہی میں بھی پھینٹ کر اچھے سے اور گھرت کا سیون کیا جا سکتا ہے۔ اور بتایا گیا ہے یواگو۔ تو یواگو سامانیہ روپ سے دلیا یوں کہا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی ودھی الگ ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں 6 گنا جل لیا جاتا ہے، چاول لے کر اس سے 6 گنا جل لیا جاتا ہے۔ جب آدھا جل رہ جاتا ہے تو اس کو اتار لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چاولوں کا بھی بنتا ہے، لوگ گیہوں کا بھی بناتے ہیں۔ 6 گنا جل آدھا رہ جائے، یعنی کہ 3 گنا رہ جائے، تب اس کو اتار لیتے ہیں، اس کو یواگو کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی یواگو میں بھی سیون کیا جا سکتا ہے اسنیہوں کا۔ پھر سوپ بتا رہے ہیں، سوپ جو ہے تو جو اچھے سے جو دال پکائی جاتی ہے، بڑھیا سے دھو کر دال کو 14 گنا یا 18 گنا جل میں ڈالا جاتا ہے اور پکاتے ہیں۔ دال جب بڑھیا سے گل جاتی ہے اور پانی
चतुर्थांश रह जाता है, मतलब चौथाई पानी रह जाता है। मान लीजिए 16 गुना जल डाला, 14 गुना से 18 गुना तक का है विधान, 16 गुना जल डाला तो चौथाई मतलब 4 गुना रह जाए, इसको सूप कहते हैं। इसके साथ भी स्नेह का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही शाक बनाई जाती है, जो साग हम बनाते हैं उसी को शाक कहते हैं। तो उसके साथ भी जो सिद्ध शाक है, अनेक पत्तों का बनाया जाता है, पानी निचोड़ दिया जाता है उसमें से, फिर उसको भूंज दिया जाता है अच्छे से, उनके साथ भी स्नेहों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है यूष। तो यूष बनाने के लिए भी, हाँ यूष की तो हम चर्चा कर चुके हैं, पोटली बांध कर दाल की, और 18 गुने जल में उसे पकाया जाता है, जब वो आधा रह जाता है तो वो पोटली हटा देते हैं, ये यूष कहलाता है। इसमें भी हम पी सकते हैं मिलाकर स्नेहों को। और भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे खड है, तो खड जो है फलों से तैयार किया जाता है। तो जो फल हैं, उन फलों के गूदों को निकाल कर और फिर उसको इसी प्रकार से पकाया जाता है, और फिर पकाकर वो इसी प्रकार से खड बन जाता है। जैसे जिस तरह से कढ़ी बनाई जाती है उसी तरह से खड भी बनाया जाता है। और फिर और भी बताया काम्बलिक। तो ये जो तिल होते हैं, तिल को पीस कर उसका जो चटनी बना लेते हैं एक तरह से, और अनार के दाने जो होते हैं उनकी खटाई से इसको तैयार किया जाता है, वो काम्बलिक कहलाता है। और फिर इनको जो है घी आदि से भून लिया जाता है, भूनकर सौंठ है और सब मसाले सौंठ आदि डालकर, और फिर उनको संस्कृत किया जाता है, संस्कार किया जाता है घृत से, घृत में मसाले आदि डालकर, और फिर संस्कार कर दिया जाता है, छौंक लगाना सामान्य रूप से कहते हैं। तो ये कृत हो जाते हैं, और जिनमें ये ना किया जाए तो वो अकृत होते हैं। ऐसे ही सत्तू, सत्तू के विषय में तो हम सब जानते ही होंगे। भुने हुए अनाजों को पीसकर उसका आटा बना देते हैं तो वो सत्तू हो जाता है। सत्तू का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है, सत्तू में मिलाकर जो है घृत आदि का सेवन, स्नेहों का सेवन। तिल की पीठी है, तिल को पीस कर और बना लेना, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही चटनी वगैरह बनाई जाती है विभिन्न प्रकार की, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। और ये तो हमने जो स्नेहन करने के लिए जो हम खाते हैं उसके विषय में बात की। इसके अलावा जो जो तेल आदि स्नेह है उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो
ان کا प्रयोग हमारा मालिश करने में होता है, बस्ती करने में होता है, उत्तर बस्ती करने में होता है। बस्ती जो होती है वो गुदा मार्ग से दी जाती है, उत्तर बस्ती मूत्र मार्ग से दी जाती है, तो इसमें भी स्नेहों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही स्नेह का प्रयोग गंडूश करने में, गंडूश कहते हैं जिसको कुल्ला करना, मुंह में तेल भरा और तेल से काफी देर तक यूं कुल्ला करते रहते हैं, जैसे गुनगुना सा सहन करने योग्य गर्म तेल से उससे कुल्ला करते रहते हैं, इसको गंडूश कहते हैं, गंडूश धारण करना। ऐसे ही कानों में भी तेल डाला जाता है, स्नेहन किया जाता है वात आदि रोगों के लिए। ऐसे ही नाक में भी डाला जाता है, नस से भी लिया जाता है, स्नेहन उससे भी होता है। अक्षि तर्पण भी होता है, आंखों के बाहर आटा वगैरह लगाकर उसमें तेल भर दिया जाता है, तो अक्षि तर्पण होता है स्नेह से। तो इस प्रकार से अलग अलग ये विचारणाएं हैं जिनमें स्नेहन अलग अलग ढंग से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ स्नेह के विषय में जो विशेष बातें थी हमने समझी। तो स्नेहों का प्रयोग जो स्नेहन करने के लिए और स्निग्धता का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमारा, जहाँ वात बढ़ी हुई हो तो वहां पर स्नेहों का प्रयोग अधिक किया जाता है, विशेष किया जाता है वात की शांति के लिए। और तेल आदि का प्रयोग वात शांति के लिए विशेष रहता है, लेकिन पित्त शांति के लिए जो देशी गौ का घृत है वही विशेष है। तो ये हमारा स्नेहों के विषय में है। मात्रा के विषय में भी अपने को जानना चाहिए कि स्नेह की कितनी मात्रा जो है वह दी जाए। तो मात्रा का अभिप्राय यहाँ पर कितने ग्राम दिया जाए या ml दिया जाए ऐसे नहीं है, यहाँ पर पाचन के हिसाब से है। अलग अलग लोगों की पाचन शक्ति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो जितना जिसकी पाचन शक्ति है उसके अनुसार उसकी मात्रा का निर्धारण होता है। तो जैसे एक प्रधान मात्रा हुई, अधिकतम जिसको कहेंगे, वो अधिकतम मात्रा कितनी दी जाती है, जो एक दिन और एक रात में पच जाए, अर्थात एक बार ले लिया स्नेह, उसके बाद में कुछ खाने की आवश्यकता ही ना पड़े दिन रात, इतनी मात्रा, इसको प्रधान मात्रा कहते हैं। सबसे अधिक यही, सबसे बड़ी मात्रा यही है, इससे अधिक जो है वो स्नेह नहीं दिया जाता। फिर दूसरी मात्रा जो मध्यम होती है, तो मध्यम मात्रा जो है वह दिन दिन में पच जाए, 12 घंटे में। पचने का अभिप्राय क्या है,
पचने के बाद में व्यक्ति को फिर से भूख लगती है, यही उसका चिन्ह है कि पच गया। जब तक पचेगा नहीं तब तक भूख लगेगी ही नहीं किसी भी हाल में, पूरा पचने के बाद ही भूख लगेगी। तो वह मात्रा जो 12 घंटे में पच जाए वो मध्यम मात्रा है, और जो मात्रा 6 घंटे में पच जाए वो मात्रा छोटी मात्रा कहलाती है, ह्रस्व मात्रा कहलाती है। तो ये 3 मात्राएं जो है वो आयुर्वेद में प्रयोग के लिए बताई गई हैं। इन 3 मात्राओं का स्नेहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से कैसे कैसे पुरुष हैं जिनके लिए ये मात्राएं प्रयोग की जाती हैं, किसको प्रधान मात्रा देनी चाहिए, किसको मध्यम मात्रा देनी चाहिए, किसको ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए, तो इसके विषय में ऋषि बताते हैं जिनका अभ्यास अधिक स्नेह का है, अर्थात घृत आदि पर्याप्त मात्रा में खूब स्नेह का प्रयोग करते हैं, उनका अभ्यास है, भूख प्यास को सहन करने की उनकी शक्ति है, उनको भूख प्यास सहन हो जाती है, और जिनकी जठराग्नि बहुत बलवान है, तीक्ष्ण है। बलशाली पुरुष जो हैं और किस प्रकार के रोगी, गुल्म के रोगी, वायु गोला जिनको होता है, जिन्हें सांप ने डस लिया हो, ऐसे लोग, उन्माद रोग के जो रोगी हैं, या मूत्रकृच्छ जिन्हें हो गया हो, और एक और जिन रोगियों को मल अत्यंत कठोर आता हो, बहुत कठोर मल आता हो, तो उनको उत्तम मात्रा दी जाती है, सबसे बड़ी वाली मात्रा, प्रधान मात्रा जिसे कहा गया। फिर जब उत्तम मात्रा दी जाती है तो उसमें गुण क्या होते हैं, तो जो स्नेह की उत्तम मात्रा जो दी जाती है तो ये विधि पूर्वक जो सेवन की जाती है, यह स्नेह की उत्तम मात्रा रोगों को बहुत जल्दी शांत कर देती है, लेकिन विधि पूर्वक ली गई हो। और सभी रोग मार्गों से ये उत्तम मात्रा सभी रोग मार्गों में पहुंच जाती है और दोषों को नियंत्रण में ले आती है और बल को बढ़ाती है। ये उत्तम मात्रा शरीर, इंद्रिय और मन को फिर से ताजा कर देती है। ये उत्तम मात्रा का प्रभाव है, अगर विधि पूर्वक अच्छे से उसका सेवन किया गया। फिर मध्यम स्नेह किनको देना चाहिए, मध्यम मात्रा, तो अभी हमारा समय पूरा हो गया है, तो उसका चर्चा मध्यम और ह्रस्व मात्रा किनको देनी चाहिए उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे।
और भी जो विशेष है, क्योंकि स्नेह ऐसी चीज है, कोई स्नेह इस प्रकार की चीज नहीं है जो कोई बहुत विशेष औषध हो। स्नेह बहुत सामान्य है, हम सब लोग प्रयोग भी करते हैं। अगर इसके विषय में उचित जानकारी हो जाए तो बहुत सारी चीजें हमारी स्नेह से भी नियंत्रण में आ जाती हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और पूरी जानकारी हम प्रयास करेंगे कि हमें प्राप्त हो जाए। ये हमारे घरेलू नुस्खों के अंतर्गत ही आती है, स्नेह पान की मात्रा। और तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।